the transport in plant is divided into two types, short distance and long distance. So this is, let's say, one of a small piece, a small section of a plasma membrane that is shown over here. Most of the water, major portion of the water crosses the plasma membrane with the help of facilitated diffusion. First of all, what is water potential? Why water potential has been introduced? कि water molecules के पास में ये free energy कहाँ से आती है? This physical pressure can also increase the ability or water potential of the water. Fate of a plant cell in different types of solution. So first type of solution is a hypertonic solution. Water potential को ये बहुत ही important points है मेरे प्यारे बच्चों, और इन्हीं points के ऊपर generally NTA question पूछता है. Long distance transport के बारे में, for example long distance का example क्या हो सकता है? So endodermis की radial और tangential walls के ऊपर present होता है Casparian strips. Cohesion, tension, transpiration, pull theory. इस पे important क्यों है? क्योंकि इस पे, इन दोनों पे क्वेश्चन बन चुका है. NTA has already asked question on these 2 points. तो ये 2 points आपके लिए important है. Hello everyone, my name is Kiran Chaudhary and I welcome you back at Infinity Learn by Sri Chaitanya. My dear students, in this class we will be discussing about the first chapter of plant physiology, and that is transport in plant. So let's get started. In this lecture, my dear students, I'm going to make you revise all the important concepts on which either NTA has already asked question in the NEET exam or will be asking in the coming NEET 2023. So let's get started, and this is the context of the chapter, that is transport in plant. So what are the substances that need to be transported inside a plant? Water, mineral nutrients, organic nutrients like sucrose, my dear students, the photosynthates, gases and hormones. Now these substances which need to be transported inside a plant body, either they have to travel a short distance, right, or they have to travel a long distance. So depending on that, my dear students, the transport in plant is divided into two types, short distance and long distance. Short distance transport like maybe transporting these substances within a cell, example within a cell, or from one cell to another cell, right? So this short distance transport can be attained with the help of, my dear students, either diffusion or active transport. Diffusion is of two types I will be discussing. Either it will be SD, that is the simple diffusion, or it will be FD or facilitated diffusion. Depending upon the substances, the substance will either use SD or FD. The nature of the substance will define that. Next is active transport. This is also a type of a transport through which short distance transport can take place inside the plant body. Now next thing is, my dear students, long distance transport. So there are substances, for example water along with the minerals, need to be transported from the roots to the leaves via stem. So this is a very long transport, right? So imagine if a plant is like a neem tree, eucalyptus tree, so you can imagine the height the water and minerals need to travel. Similarly, the food, the photosynthates that are produced inside a leaf during photosynthesis of a eucalyptus leaf, imagine those photosynthates, products of the photosynthesis, need to travel from leaf to the other parts of the plant, say for example roots. So this is a very long distance. So these are the examples of long distance transport, right? So example, water and minerals getting transported from roots to the leaves via stem, and food or photosynthesis is getting transported from leaves to the root. Now long distance transport will take place with the help of a special mechanism known as mass flow. So with the help of mass flow, my dear students, water along with the minerals, water along with the minerals will travel with the help of a complex permanent tissue, that is xylem, and my dear students, the food, the photosynthates that are produced during photosynthesis, they will travel with the help of mass flow in the phloem, which is an example of another permanent, complex permanent tissue. So this is how long distance and short distance transport takes place, my dear students. This is the overview. Now let us discuss in detail about the short distance transport. So I will talk
each one in detail. So first we will start with the short distance transport, where I will explain you how diffusion takes place, how simple and facilitated diffusion takes place, and then how active transport takes place. So first one is diffusion. Now one thing that you need to understand is, my dear students, that diffusion can take place inside a living cell or a living system as well as in a non-living system. So presence of a plasma membrane or a cell membrane is not required for this diffusion to take place, right? This is something you need to understand. Even the diffusion can take place in this room also, right? So right now I am explaining you diffusion in a plant cell, and that is why I have taken an example of the plasma membrane. So this is, let's say, one of a small piece, a small section of a plasma membrane that is shown over here. So please focus on this diagram. Through this diagram I will make you understand what diffusion means or how diffusion takes place. So right now I am explaining you diffusion taking place inside a plant cell, and this is a section of a plasma membrane through which the molecules are going to diffuse. Now these are three cases actually, or situations in three different times. So the first one is situation 1. This is situation 1, guys. This is situation 2. This is situation 2, and this is situation 3. Situation 1, situation 2 and situation 3, and this is a section of plasma membrane. Now first you have to focus on situation 1. So what is happening? This is a section of plasma membrane, part of plasma membrane, PM I am writing. Now you know the plasma membrane is made up of lipid bilayer, right? So these are the phospholipid molecules which is forming the bilayer. Now what I want you to understand is, in the first situation there is a higher concentration of solute outside. It can be solute, molecules, gases, ions, anything, okay? So there is a higher concentration towards this side. So let us say this is outside cell membrane, outside cell. So this is outside cell, and let's say this portion is inside cell. Let's say this is inside cell. So if you notice clearly, my dear students, that there is more solute concentration outside and there is very less inside. So for example, I can draw 1 or 2 molecule over here for your understanding. So concentration is very less inside the cell and very high outside. So what is diffusion? Diffusion means, my dear students, movement of substances from a region of their higher concentration to a region of their lower concentration across the cell membrane if it is a living system, right? So next is, my dear students, see here. So here the substances are moving from a region of high to low concentration, right? Right now this is a plasma membrane, so it will be across the plasma membrane. Next thing that you need to understand is, my dear students, so this is situation 1. So this situation 1 is going to result into, convert into a situation 2 after some time. Because of the concentration gradient, the substance will start moving. So you can say, because of the concentration gradient, solute particles are moving towards a lower concentration. बट नाउ द क्वेश्चन इज, कब तक ऐसा, कब तक चलेगा, कब तक सल्यूट हायर से लोअर तक आता रहेगा? ये तब तक होता रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, जब तक कि दोनों तरफ, आउटसाइड द सेल एंड इनसाइड द सेल, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट इज similar or equal, right? So this movement will continue until and unless the equilibrium is reached. पर एक बात ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, इक्विलिब्रियम पे आपका सब्सटेंसेस का जो नेट मूवमेंट होता है वो जीरो होता है या वो जीरो होता है, राइट? सो नेट मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस इज एक्चुअली zero, right? But that doesn't mean that molecules will not move. So remember, equilibrium भी अपने आप में एक dynamic process होता है. So at equilibrium, the number of molecules that are moving inside the cell and the number of molecules that are moving outside the cell, that will become equal. So net movement zero, but movement होगा. So equilibrium कब आएगा? जब दोनों तरफ outside and inside cell concentration solute particles का similar या same हो जाए. So this is what a diffusion is. ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, जब भी डिफ्यूजन होता है, इट डज नॉट रिक्वायर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. सो कैरियर प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, चैनल प्रोटीन्स की हेल्प नहीं लेनी पड़ती है. सब्सटेंसेस आर मूविंग फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन विदाउट इन्वॉल्विंग the help or without taking help of the
transport membrane protein, and also the movement is along the concentration gradient, so no expenditure of ATP energy is seen. नेक्स्ट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. अब ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में. सो लिसन दिस केयरफुली. द सब्सटेंसेस विच आर स्मॉल इन साइज, विच आर नॉन पोलर, नॉन चार्ज, राइट. सो द सब्सटेंसेस विच आर स्मॉल, छोटे छोटे सब्सटेंसेस, नॉन पोलर सब्सटेंसेस, या फिर आप कह सकते हैं ऑल्सो लिपिड सोल्यूबल, लिपिड soluble. So the substances which are small, non-polar, or you can say hydrophobic and lipid soluble, these substances can easily cross the plasma membrane through simple diffusion by using the spaces that is available between the phospholipid molecule. वो easily cross कर जाते हैं. लेकिन जब भी आपके जो substances है, जो solute particles है, अगर वो polar होगा, हाइड्रोफिलिक होगा, right, और lipid में soluble नहीं होगा, right. So whenever the substance are, let's say, polar in nature, right, or they are large, they are hydrophilic, hydropolar, hydrophilic, not soluble, not that much soluble, or maybe not soluble in lipids, my dear students, then those types of substances cannot easily cross the plasma membrane with the help of simple diffusion. Yes, तो इस तरीके से सिंपल डिफ्यूजन जिस तरीके से होता है मेरे प्यारे बच्चों, वैसे उन सारे सब्सटेंसेस का जो कि पोलर है, हाइड्रोफिलिक है या लिपिड में सल्यूबल नहीं है, वो ईजिली क्रॉस नहीं कर सकते. सो ऐसे सब्सटेंसेस के लिए, ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए इनके मूवमेंट को फैसिलिटेट करना पड़ता है. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? दैट मीन्स मूवमेंट ऑफ सच सब्सटेंसेस विच आर लिपिड insoluble, right, or less soluble in lipids, or they are hydrophilic in nature, or they are polar in nature. ऐसे substances को plasma membrane के across move कराने के लिए आपको plasma membrane में present integral protein, transport proteins का use करना पड़ता है. So there are several different types of transport proteins, integral proteins that are present in plasma membrane. They will help in facilitating the diffusion of these types of substances, right? So एक example भी दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, एक बहुत प्यारा सा आपका डायग्राम है NCERT के अंदर. So this is how facilitated diffusion takes place. So this is your molecule. Let's say it is hydrophilic or polar in nature. Now this substance cannot cross the plasma membrane through simple diffusion. So it cannot diffuse like this. ये ऐसे नहीं जा सकता है. तो क्या करना पड़ेगा? membrane में जो present carrier protein या transport proteins है, इनका use करना पड़ेगा. So this is situation 1 again. So this is situation 1. How to understand the diagram I am explaining you. ये आपका सिचुएशन 1 है और ये आपका सिचुएशन 2 है. ये आपका सिचुएशन 1 है और ये आपका सिचुएशन 2 है. ठीक है, तो सिचुएशन 1 में क्या हुआ, ये जो मॉलिक्यूल था वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में लोड कर लिया. सो दिस मॉलिक्यूल वाज लोडेड ऑन द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. नाउ दिस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इज गोइंग टू ट्रांसपोर्ट दिस molecule inside the cell. So this was outside the cell and this is inside the cell. So this is how the transport proteins present in the plasma membrane are helping or facilitating the transport of these types of hydrophilic and non-polar substances which easily cannot cross the plasma membrane. एक चीज़ आपको जो बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है मेरे प्यारे बच्चों, here in facilitated diffusion, transport will be along concentration gradient. Along concentration gradient. तो जो ट्रांसपोर्ट है सब्सटेंसेस का थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, it is along the concentration gradient. That means substances will be moving from a region of their higher concentration to a region of their lower concentration, right? तो यहाँ पर substances facilitated diffusion के अंदर भी substances अपने high से अपने low region की तरफ transport होते हैं. This is known as along the concentration gradient, or maybe you can say it is a downhill.
right? So because it is moving along the concentration gradient, because the substances during facilitated diffusion are moving along the concentration gradient downhill, there is no expenditure of ATP. So no ATP is required, no ATP expenditure is required during facilitated diffusion. So facilitated diffusion में membrane proteins का यूज तो लिया जाता है, लेकिन ATP का कोई यूसेज नहीं होता है. Concentration gradient पहले से ही प्रेजेंट होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों across the plasma membrane, cell membrane for this facilitated diffusion to take place. Next thing, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वाटर, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, NCERT में भी मेरे प्यारे बच्चों आपका दे रखा है. जो वाटर है आपका, वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? पोलर होते हैं. वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? पोलर होते हैं. और क्योंकि आपका वाटर पोलर है और लिपिड मेम्ब्रेन कैसी है? मेम्ब्रेन इनसाइड से लिपिड से बनी हुई और लिपिड्स नॉन पोलर है. सो वाटर मॉलिक्यूल कैन नॉट इजीली क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू सिंपल डिफ्यूजन. सो मोस्ट ऑफ द वाटर, major portion of the water crosses the plasma membrane with the help of facilitated diffusion. Very insignificant amount of water molecules pass or cross the plasma membrane through simple diffusion. Most of it is moving through facilitated diffusion. Next, आपके facilitated diffusion टॉपिक के अंदर तीन टर्म्स और दे रखी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट. समझते हैं ये क्या है. तो आपको इसमें इमेजिन क्या करना है? NCERT का डायग्राम है. दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एंड दीज आर योर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. ये क्या है? कैरियर प्रोटीन है आपकी, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है. सो यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट में क्या डिफरेंस है? तो ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों. तो इसमें होता क्या है? यूनिपोर्ट में कोई भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस can cross the plasma membrane with the help of carrier protein without getting affected by transport of any other substance. यानी कि बहुत सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी एक सब्सटेंस A can move along the concentration gradient. अच्छा, ये कैपिटल और स्मॉल है तो इसका आपको आसानी से समझना चाहिए. कैपिटल A मतलब कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, स्मॉल a मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम है. पर्पसफुली आई हैव प्लेस्ड इट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट. ओके, सो कैपिटल A मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, स्मॉल a मीन्स कॉन्सेंट्रेशन कम. सो दैट मीन्स दिस कैपिटल A टाइप ऑफ अ सब्सटेंस, दिस कैपिटल A मीन्स one particular type of a substance is moving across the plasma membrane with the help of the carrier protein along the concentration gradient. और इस A substance का जो movement है वो independent है. ये A substance किसी और substance के या किसी और type के molecule के ऊपर, उसके movement के ऊपर dependent नहीं है. ये alone can cross the plasma membrane. Antipode. Antipode में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? For any one type of molecule, ये A और B क्या है? A और B two different type के molecule हैं. ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, A और B मतलब two different types of molecules. So it is saying for any molecule A to cross the plasma membrane, any other type of molecule B should cross the plasma membrane with the help of carrier protein in the opposite direction. यानी कि A substance को अगर plasma membrane के across ट्रैवल करना है विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, तो एक और दूसरे टाइप का मॉलिक्यूल, बी टाइप का मॉलिक्यूल भी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करना चाहिए इसी मूवमेंट के टाइम पर विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन. सिम्पोर्ट में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? फॉर एनी सब्सटेंस ए टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, अनदर टाइप ऑफ अ सब्सटेंस बी शुड ऑल्सो क्रॉस the plasma membrane with the help of the same carrier protein in the same direction. तो यूनिपोर्ट में किसी A substance को along the concentration gradient जाने के लिए with the help of carrier protein across the plasma membrane किसी और substance के ऊपर dependence नहीं होती है. एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट में dependence होती है. एंटीपोर्ट में A substance के अंदर जाने के लिए B substance को बाहर आना पड़ेगा, B टाइप के मॉलिक्यूल को बाहर आना पड़ेगा, और सिम्पोर्ट में एक सब्सटेंस को अंदर जाने के लिए बी सब्सटेंस को भी इसके साथ साथ अंदर जाना पड़ेगा. राइट, सो दिस इज व्हाट एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट एंड यूनिपोर्ट मीन्स. नेक्स्ट पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में. तो ध्यान से सुनिएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? सब्सटेंसेस मूव करते हैं अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. ध्यान से सुनना, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मूवमेंट डाउन हिल था,
यानी कि अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट था। सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन की तरफ जा रहे थे और इस वजह से मूवमेंट स्पॉन्टेनियस था, कोई एटीपी का एक्सपेंडिचर की जरूरत नहीं थी। बट अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी का एक्सपेंडिचर करना पड़ता है बिकॉज द मूवमेंट इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, द मूवमेंट इज अपहिल, द मूवमेंट इज ऑफ द सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन। सो दिस इज योर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसे समझने के लिए आप इमेजिन कर लीजिए ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये लिपिड बाइलेयर है, राइट। दिस इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर, दैट मीन्स आउटसाइड सेल। This is intracellular, that means inside cell. So अगर आप ध्यान से देखें ये जो रेड कलर के जो सब्सटेंसेस हैं ये इनका कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड सेल ज़्यादा है और आउटसाइड सेल कम है। वहीं ग्रीन कलर के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका कॉन्सेंट्रेशन बाहर की तरफ ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है। सो इफ़ यू नोटिस रेड सब्सटेंसेस आर मूविंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, यानी कि लेट मी चेंज द इंक, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों द रेड मॉलिक्यूल्स इफ यू रेड सब्सटेंसेस और सल्यूट आर मूविंग फ्रॉम आउटसाइड टू इन, यानी ये मूवमेंट लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन की तरफ हो रहा है। ये कैसा है, ये अपहिल है। तो यहाँ पर एटीपी का एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, अपने आप नहीं होगा, स्पॉन्टेनियस नहीं है। उस तरीके से ग्रीन मॉलिक्यूल्स आर मूविंग फ्रॉम ए रीजन ऑफ द लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, इट इज अगेन against the concentration gradient, it is uphill, so expenditure of ATP energy will be required. So इस टाइप के एक्टिव ट्रांसपोर्ट को करने के लिए भी आपको स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है जो इन ट्रांसपोर्ट को करने में हेल्प करते हैं, जिनको आप पंप कहते हैं। एग्जाम्पल प्रोटॉन पंप, राइट। सो सब्सटेंसेस अक्रॉस मेम्ब्रेन, substances will cross the membrane from a region of their lower concentration to the region of their higher concentration with the help of specific membrane proteins like pumps. Next, अब हम लोग समरी की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या सीखा हमने अभी तक। ठीक है, तो ये तीनों टाइप के आपके सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये तीन टाइप के आपके टाइप ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टर जिनके बारे में हम लोग ने पढ़ाई करी। अब इसको एक बार समराइज कर लेते हैं। रिक्वायर्ड स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। सो अगर आप याद करें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की ज़रूरत आपको कब पड़ती है, जब आप फैसिलिटेटेड या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। सिंपल डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों हाईली सेलेक्टिव। तो आपका ट्रांसपोर्ट हाईली सेलेक्टिव तब होता है जब आप ट्रांसपोर्ट के अंदर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का यूज करें, बिकॉज मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर हाईली सेलेक्टिव, highly particular in what they are going to transport, right? So because simple diffusion is not using the membrane proteins, तो वो highly selective भी नहीं होगा, because facilitated transport, active transport is using membrane proteins, so they will be highly selective in nature. ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन, सिमिलरली मेरे प्यारे बच्चों ट्रांसपोर्ट भी सैचुरेट तभी होता है जब आपका ट्रांसपोर्टेशन के अंदर सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अक्रॉस द मेम्ब्रेन यू आर यूजिंग मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, राइट। सो सैचुरेशन, ट्रांसपोर्ट saturation will not be seen in the simple diffusion but will be seen in facilitated and active transport because they both are using the membrane protein, transport protein. Uphill transport, uphill transport means against the concentration gradient. अपहिल ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। सो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट आपका मूवमेंट होता है। अपहिल में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है, यानी सब्सटेंसेस अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। सो सब्सटेंस आर मूविंग फ्रॉम देयर लोअर टू देयर हायर, राइट। सो अपहिल ट्रांसपोर्ट किस किस में होगा, ओनली एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड और सिंपल डिफ्यूजन कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों, डाउनहिल है, यानी सब्सटेंसेस कैसे मूव करेंगे फ्रॉम देयर हायर टू लोअर। नेक्स्ट है रिक्वायर्स एटीपी। तो एटीपी की भी रिक्वायरमेंट तभी होती है मेरे प्यारे बच्चों जब आपका अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा हो। सो इफ यू नोटिस ओवर हियर एटीपी कहाँ रिक्वायर्ड होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, सिंपल में नहीं और फैसिलिटेटेड में भी नहीं यूज होगा। ओनली इफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट विल रिक्वायर एटीपी एक्सपेंडिचर फॉर ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेस और सेल्यूल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, राइट। सो दिस फिनिशेस योर
means of transport. Now, next thing that we need to discuss in this class is water potential. Okay, so now we will talk about water potential. Water potential is a very important concept given in your NCERT. First of all, what is water potential? Why water potential has been introduced? First of all, वाटर पोटेंशियल आपको पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है ताकि आप लोग समझ सके वाटर के मूवमेंट को. सो वाटर potential will help you in understanding from where to where water will move. So it is very much required, helps to predict the direction in which water will flow. वाटर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया जाता है साई डब्ल्यू के, सो साई और नीचे डब्ल्यू. सो दिस इज वाटर पोटेंशियल. सो अगर वाटर पोटेंशियल को डिफाइन करने की बात आती है मेरे प्यारे बच्चों, तो वाटर पोटेंशियल इज द एबिलिटी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स टू डू सम यूजफुल वर्क. क्योंकि अगर आप वाटर पोटेंशियल, पोटेंशियल का इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा? एबिलिटी. तो क्या है ये? वाटर की एबिलिटी है. कैसी एबिलिटी है? टू डू सम यूजफुल वर्क. और यूजफुल वर्क क्या होता है? यूजफुल वर्क मीन्स एग्जाम्पल मूविंग विद इन अ सेल or from one cell to another. So water potential की मदद से water is able to do some useful work like moving from one cell to another or within a cell. अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग किसी भी सिस्टम के अंदर दो टाइप की एनर्जी होती है. इस एक को आप बाउंड एनर्जी कहते हैं और एक को फ्री एनर्जी. सो फ्री एनर्जी का ही यूज करके कोई भी सिस्टम वर्क करता है, यूजफुल वर्क करता है. तो सिमिलरली अगर वाटर मॉलिक्यूल्स को यूजफुल वर्क कर रहे हैं तो उसका रीजन उन वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट फ्री एनर्जी. सो फ्री एनर्जी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इज एक्चुअली द वाटर पोटेंशियल, गिविंग द वाटर मॉलिक्यूल्स पोटेंशियल और एबिलिटी टू परफॉर्म सम यूजफुल वर्क. सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, वाटर पोटेंशियल और फ्री एनर्जी आर कनेक्टेड टर्म्स. नेक्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज वाटर पोटेंशियल को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर और उसकी यूनिट्स को लिखा जाता है इन टर्म्स ऑफ पास्कल. वेरी सिंपल. आइए आगे बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों. तो समझने की कोशिश करते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स के पास में ये फ्री एनर्जी कहाँ से आती है जिसकी मदद से या जिसकी हेल्प से वाटर मॉलिक्यूल्स वर्क कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन वाटर मॉलिक्यूल्स के पास में पहले से ही प्रेजेंट है और वो है उनकी काइनेटिक एनर्जी. सो वाटर मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट मोशन. आप उनको फ्री छोड़ दीजिए, वाटर मॉलिक्यूल्स फिर भी मूव करेंगे. हालांकि आपको एक ग्लास ऑफ वाटर, अगर आप एक ग्लास में वाटर को फिल करें और अगर उसको ऑब्जर्व करें तो आपको नजर नहीं आता वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं. बट अगर आप माइक्रोस्कोपिकली उसे देखने की कोशिश करें, my dear students, at minute level you will see the water molecules are actually moving, right? So water molecules are in constant motion and by virtue of it we can say, my dear students, kinetic energy is the reason because of which water molecules are in constant motion. Water molecules के पास एक velocity है जिससे वो इधर से उधर घूम रहे हैं. So because water molecules possess kinetic energy, hence water molecules has this ability, hence water molecules has this ability or potential or free energy to do some useful work. तो जितना ज़्यादा water होगा उतना ही ज़्यादा concentration, जितना ज़्यादा concentration में water होगा उतना ही ज़्यादा आपकी water की potential होगी. ये एक important factor है. So kinetic energy of water molecule is an important factor that is imparting free energy to the water molecules with the help of which they can gain this water potential and do some useful work. एक चीज़ और याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, वाटर पोटेंशियल हम जब भी डिफाइन करते हैं तो हम बेसिकली फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं. तो वाटर मॉलिक्यूल्स अगर किसी सॉल्यूट पार्टिकल्स के साथ में राइट बाउंड हो जाते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो जाती है, उनकी वेलोसिटी रिड्यूस हो जाती है और इस टाइप के मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं जो सॉल्यूट से बाउंडेड होते हैं. तो जब भी आप फ्री एनर्जी की बात करेंगे, वाटर पोटेंशियल की बात करेंगे, यू शुड टेक इन टू कंसिडरेशन फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल टू मूव. सो very simple thing that you need to remember, greater is the concentration of water or greater is the concentration of free water molecules. Free water molecules, greater is the concentration of free water molecules, greater will be the kinetic energy and more will be the water potential, and therefore more will be the
water potential. Right? Next factor. So water molecules की water potential you can increase by even applying a physical pressure. So any pressure which is above atmospheric pressure, if you apply that pressure on the water molecule from outside, my dear students, this physical pressure can also increase the ability or water potential of the water molecules. Please remember, these are the two important factors, right? Now, what is the next thing that we need to understand is the effect of the solute, right? So, water potential, my lovely kids, is affected by two things, right? First of all, water potential is affected by dissolving solute into the water, pure water or solvent, and secondly by applying physical pressure, as I explained right now, right? So you must have heard about the term psi S and psi P. What is psi S? Solute potential. What is psi P? Psi P is the pressure potential. So psi S or solute potential is actually the measure by which water potential will be lowered by dissolving solute into the pure solvent. So this is what we call as, or this is how we define solute potential. And when we talk about pressure potential is the measure of increasing the water potential by applying pressure on the water molecule. So these are psi S and psi P, which affects water potential value, and that is why when water potential is defined, it is a sum of psi S and psi P. So how do you define water potential? Water potential psi W is defined as psi S plus psi P. So this is the effect of, guys, this is the effect of solute, and always remember, addition of solute or dissolution of solute into the pure solvent is always going to reduce the water potential, because it will reduce the available free water molecules that I will explain right now. And psi P is the effect of the pressure, external pressure that you are applying on the water molecules, because of which water potential increases, right? So this is your psi P, this is the effect of pressure. So right now I will be explaining you what is the effect of solute on water potential. Although I told you it will reduce the water potential, let's see how. So you need to consider, my dear students, this test tube, this U-shaped test tube, and here is a pure water. Pure water means availability of the free water molecules will be very high over here, because there is absence of solute. जब solute है ही नहीं तो water molecules bound ही नहीं होंगे solute से और freely available रहेंगे. So यहाँ पे free water molecules का concentration ज़्यादा है, यानी free energy ज़्यादा है, यानी कि water potential इस side पे ज़्यादा है. वहीं अगर आप दूसरे साइड की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या है, ये सोल्यूशन है. मान लेते हैं ये शुगर मॉलिक्यूल्स है. इफ दीज आर गाइस शुगर मॉलिक्यूल्स, दीज ब्लैक डॉट्स, इसका मतलब यहाँ पे सॉल्यूट का प्रेजेंस है. सो इफ सॉल्यूट विल बी प्रेजेंट इनटू अ प्योर सॉल्वेंट, दिस इज गोइंग टू रिड्यूस द अवेलेबल फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स, because some of the water molecules will now be bonded to the sugar molecules and will lose their free energy and they will not be able to move, right? तो availability of the free water molecules reduce हो जाएगा इधर, क्योंकि water molecules bound करने लग जाएंगे solute से. So free water molecules will reduce and hence water potential, guys, hence water potential will also reduce. Hence water potential will also reduce. And you know, water always move from a region of high potential area to a region of low water potential area. So water will start moving from this side to this side until equilibrium is attained, until both the sides of the U-shaped test tube has similar or equal value of the water potential. Next thing that you need to understand is how will you calculate the water potential. So this is psi W. And this is psi S and psi P. Here psi P is 0. Psi P is the effect of pressure, right? So right now this test tube, this pure solvent as well as the solution in the U-shaped test tube is under atmospheric pressure. That means no external pressure is available right now on both the sides. Hence psi P will be 0 in both the cases, क्योंकि external pressure है ही नहीं. Effect of pressure हम लोग अभी consider नहीं कर सकते, क्योंकि हमने apply ही नहीं किया pressure, right? Psi S यहाँ पर 0 है. Psi S is the effect of the solute, so it will be 0 over here, क्योंकि यहाँ पे solute का
एब्सेंस है. एंड साई एस इज गोइंग टू होल्ड अ नेगेटिव वैल्यू ओवर हियर. ऑलवेज रिमेंबर साई एस का वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही होता है. क्यों? क्योंकि साई एस यानी कि एडिशन ऑफ द सोल्यूट हमेशा वाटर पोटेंशियल की वैल्यू को डिक्रीज ही करता है. साई पी यानी इफेक्ट ऑफ प्रेशर, मोस्टली प्रेशर का इफेक्ट मेरे प्यारे बच्चों पॉजिटिव ही रहता है. साई पी की वैल्यू मोस्टली यूजुअली पॉजिटिव ही रहती है, बट कभी कभार टेंशन जब होता है, राइट, ट्रांसपिरेशन पुल जब लगता है जाइलम के कॉलम्स के अंदर, तब जाके उसकी वैल्यू साई पी की नेगेटिव होती है, पर जनरली ये पॉजिटिव रहता है, राइट. तो हियर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सोल्यूट साई एस इज प्रेजेंट, राइट, इट्स इनटू इफेक्ट एंड इट्स वैल्यू विल बी नेगेटिव minus 0.4. Why? Because addition of solute always reduces the water potential. That is why psi s is always negative in value. So water potential क्या होगा? Psi s plus psi p. Water potential क्या है? Psi s plus psi p. तो यहाँ पर क्या होगा? 0 और यहाँ पर क्या होगा? वाटर पोटेंशियल -0.4. तो आपको पता है ये -0.4 के कंपैरिजन में 0 इज अ बिगर नंबर. सो वाटर पोटेंशियल इज हायर ओवर देयर हियर एंड लोअर ओवर देयर. सो दैट इज व्हाई वाटर विल मूव लाइक दिस. तो इसका मतलब कुछ समय के बाद में आपको इस लेवल से ऊपर की तरफ आपको सोल्यूशन नजर आएगा बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू द सोल्यूशन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट साइड. Right? So more is the solute molecules, the lower or more negative is the psi s. Hence all solutions will have a lower water potential value than water. So ये water potential की जो value है 0 मेरे प्यारे बच्चों is the maximum value. 0 is the maximum value of the water potential of a pure solvent, my dear students, which is not under any external pressure and lying at the standard room temperature. इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है जब भी आपका प्योर वाटर विदाउट एक्सटर्नल प्रेशर के प्रेजेंट हो. और हर एक सोल्यूशन का आप कोई भी सोल्यूशन बना दो, वाटर पोटेंशियल की वैल्यू 0 से कम ही रहेगी यानी नेगेटिव आएगी, क्योंकि एडिशन ऑफ सोल्यूट विल लीड टू डिक्रीज इन द वाटर पोटेंशियल. राइट, प्लीज रिमेंबर दिस. नेक्स्ट, तो चलो सम अप कर लेते हैं वाटर पोटेंशियल को. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मेरे प्यारे बच्चों और इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर जनरली एनटीए क्वेश्चन पूछता है. So psi s and psi p are the two main components that determine water potential. And how will you define water potential? Sum of psi s plus psi p. Right? लेकिन if your solution is lying at atmospheric pressure, यानी कि P external is 0. If P external is 0, then psi p value will also be 0. And in that case, water potential will become equal to the solute potential for that particular solution. Water will move from the system containing water at higher water potential to one having lower water potential. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी से ही तो आप वाटर के मूवमेंट को डिसाइड कर रहे हैं. तो वाटर का मूवमेंट, वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, कौन से सेल से कौन से सॉइल में मूव करेगा, ये डिटरमाइन किया जाएगा वाटर पोटेंशियल वैल्यूज की उन रिस्पेक्टिव सेल्स के. प्योर वाटर विल हैव द ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल. By convention, water potential of pure water at standard room temperature, which is not under any external pressure, is taken to be 0. Very important. Next topic. Next है हमारे पास में मेरे प्यारे बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे हम पाई के टर्म्स में डिफाइन करते हैं. तो ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर को थोड़ा सा इनडायरेक्टली डिफाइन किया जाता है और इसका क्या मतलब है? ऑस्मोटिक प्रेशर is the pressure required to stop the water molecules diffusing inside the solution. Right? Water, the pressure, osmotic pressure is the pressure required to prevent water from diffusing inside. In fact, is the osmotic pressure. थोड़ा सा अजीब लग रहा है सुनने में, I know. अब हम लोग डायग्राम से समझते हैं. Let me explain you this diagram given in NCERT and then you will, after explaining you this, you will be able to relate with this line very nicely. ध्यान से सुनना. आपके पास में ये टेस्ट ट्यूब है, ये सेटअप है एक्चुअली. ये सीन 1 है, ये आपका सीन 1 है और ये आपका सीन 2 है. तो आपको ये समझना है कि आफ्टर सम टी टाइम दिस सीन विल बी अटेन इन द सेम सेटअप. ओके, तो पहला ये सेटअप है और यहाँ पर वाटर है, प्योर सॉल्वेंट है, यानी यहाँ पे वाटर पोटेंशियल की वैल्यू काफी हाई होगी इन द बीकर. फिर इसके अंदर ये क्या है? फनल रखी हुई है. फनल में क्या है? सुक्रोज सोल्यूशन है, यानी कि यहाँ पे सल्यूट का प्रेजेंस है. सोल्यूशन, सो बीकर में तो प्योर वाटर है, वाटर पोटेंशियल की वैल्यू हाई है. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग जिस चीज के बारे में बात कर रहे थे वो है ये सोल्यूशन. सो इनसाइड दिस फनल देयर इज अ सोल्यूशन.
there will be presence of solute particles. Hence, available free water molecules will be less in the solution in comparison to the pure solvent which is present in the beaker outside. तो यानी कि यहाँ पे water potential की value सुक्रोज solution के अंदर water potential की value कैसी है, कम है. तो आपको पता है water always moves from a region of higher water potential to a region of lower water potential. That means water will start diffusing inside the funnel. From the beaker, water will start diffusing inside the funnel. ये आपकी membrane है, ठीक है. अब ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जैसे जैसे वाटर फनल के अंदर ऐड होता जाएगा, यहाँ पर फनल का जिस लेवल पे फनल के अंदर सोल्यूशन था उससे ऊपर वो रेज करता जाएगा, राइट. सो धीरे धीरे वाटर के मॉलिक्यूल्स अंदर जाते जाएंगे और इस सोल्यूशन का जो लेवल है वो फनल के अंदर इंक्रीज हो जाएगा. अब ध्यान से सुनना, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है. Osmotic pressure, guys, osmotic pressure is the pressure required. This pressure, osmotic pressure is the pressure required to stop the water molecules from diffusing inside the solution present in the funnel. तो यानी कि water molecules, the diffusing water molecules, they are applying pressure on the membrane in order to enter inside the funnel. Right? Why? Because water molecules which are present in the beaker, they are at higher potential. So natural tendency of the water molecules is these water molecules will apply diffusion pressure on the membrane and will try to diffuse inside the funnel. And now at this point, if you start applying pressure in the opposite direction, guys, what will happen? Slowly you start increasing the value of the pressure, and you increase the value of the pressure that you are applying from outside to that extent that even the last water molecules stop diffusing inside. So ये जो आखिरी water molecules है ये भी अंदर diffuse होना stop कर जाए. So that value of the pressure that you are applying from outside in order to prevent water molecule entering or diffusing inside the funnel is the osmotic pressure. Right? Now read it. The pressure required, osmotic pressure, pi, is the pressure required to prevent water from diffusing. In fact, is the osmotic pressure. Very important. Osmotic pressure is the function of solute concentration. जितना ज़्यादा solute आपके इस funnel के अंदर होगा, या यूँ कहूँ कि जितना ज़्यादा solute का concentration इस solution के अंदर होगा जो funnel में है, उतना ही ज़्यादा osmotic pressure होगा, because there will be difference in the water potential value will be higher if the solute concentration in this solution is higher. So because of increased difference in the water potential, these water molecules from the beaker will now be applying even a stronger diffusion force to enter inside, and then you have to apply even a more stronger force from outside to prevent the diffusing molecules. So more is the solute concentration, more will be the osmotic pressure. More is the solute concentration, greater will be the pressure required to prevent the water molecules from diffusing it. All these are NCERT lines. Very important. Pi और psi s में एक relation है. Right? Psi s is the solute potential. Psi s equals to minus of pi. So magnitude में solute potential और osmotic pressure equal होते हैं, but sign इनका opposite है. Right? So psi s and pi are numerically equal but opposite in sign. So this is all about your osmotic pressure. Next मेरे प्यारे बच्चों बात करते हैं fate of a plant cell in different types of solution. तो हमारे पास 3 टाइप के सोल्यूशन हैं जिसमें हम लोग प्लांट सेल को रखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे व्हाट इज गोइंग टू हैपन इनसाइड अ प्लांट सेल. सो फर्स्ट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन. कैसा होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन? अ सोल्यूशन व्हिच हैज अ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, यानी एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन. तो ये रहा आपका हाइपरटोनिक सोल्यूशन. और इस हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कैसी होगी मेरे प्यारे बच्चों? हाई होगी. सो यहाँ पे ध्यान रखना पर्पसफुली. ओके, ये थोड़ा इस तरफ चला गया, मैं आपको यहाँ लिख के बता देती हूँ. आई विल बी रिप्रेजेंटिंग द सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन. I will be representing the solute concentration with the sign small s and the square, and I will represent the
solvent concentration means the water concentration, solvent या फिर water का concentration I will represent with capital S and bracket. तो solute concentration small s square bracket and solvent concentration capital S with the bracket. तो ध्यान से सुनना, solution hypertonic है, यानी solution के अंदर solute का concentration ज़्यादा है. So that means small s solute का concentration is higher, right? Or plant cell, a plant cell is kept in a hypertonic. This is your plant cell which is kept inside. This is your plant cell which is kept inside a hypertonic solution. तो इसका मतलब plant cell अगर solution हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, यानी कि प्लांट सेल के अंदर सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा, लेस होगा. तो आओ यहां पर कंपैरिजन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों. यहां पर अब हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं. तो ये आपके दो कंपैरेटिव स्केल्स हैं, ध्यान से सुनना. दिस इज सोल्यूशन एंड दिस इज योर प्लांट सेल. तो ये आपका सोल्यूशन है और ये आपका प्लांट सेल है, यानी सोल्यूशन के जो मेजरमेंट्स, जो पैरामीटर्स है वो यहाँ लिखे हैं और प्लांट सेल के इधर है. सो सोल्यूशन कैसा है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, राइट, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है. तो यानी कि स्मॉल एस का वैल्यू सोल्यूशन में ज्यादा है और स्मॉल एस यानी कि सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन लेस है प्लांट सेल के अंदर, राइट. अब सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन और सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन ऑपोजिट है. सॉल्यूट इज मोर इन द सॉल्यूशन, हेंस सॉल्वेंट इज गोइंग टू बी लेस. सो दिस इज योर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन, और यू कैन से अवेलेबिलिटी. सॉल्वेंट क्या है आपका, पानी है, वाटर है. So when you are saying that solute concentration is higher in the solution and solvent is less, indirectly you are trying to say that the available free water molecules are less in the solution and available free water molecules are more. And you already know water potential depends upon the free water molecules. If free water molecules are less in the solution, that means water potential will be less into the solution. And if available free water molecules are more in the plant cells, that means water potential of the plant cell will be higher, right? And now you have already learnt over here that the solute potential, osmotic pressure, you have already learnt over here that the osmotic pressure is a function of solute concentration. यानी कि पाई solution का कैसा होगा, हाई होगा, क्योंकि आपका solute का concentration high है, and pi and s are directly proportional. So here solute concentration is low, so osmotic pressure of the cell will be low. अब आपको पता है वाटर कहां से कहां मूव करता है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ लो वाटर पोटेंशियल. सो वाटर पोटेंशियल ज्यादा कहां है, सेल में है, कम कहां है, सोल्यूशन में. सो दैट मीन्स वाटर विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम प्लांट सेल इनटू द सोल्यूशन. सो पानी बाहर आ जाएगा, water will start coming out, guys. Water will start coming out from the plant cell and enter into the solution. So इसी को क्या कहेंगे, exosmosis. So when your plant cell is kept in a hypertonic solution, क्या होगा प्लांट सेल में, एक्सऑस्मोसिस होगा आपकी. और अगर ये एक्सऑस्मोसिस कंटिन्यू रहा तो आपकी सेल जो है वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी, राइट. इसमें पड़े पड़े हाइपरटोनिक सोल्यूशन में अगर बहुत लंबे समय तक रह गई तो वो सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी बिकॉज ऑफ एक्सऑस्मोसिस. नेक्स्ट है, अगर आपका सोल्यूशन हाइपोटोनिक है, इफ योर सोल्यूशन इज हाइपोटोनिक इन नेचर, इसका मतलब सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है इन द सोल्यूशन. सो फिर से वही पैरामीटर्स है हमारे सोल्यूशन और प्लांट सेल के. तो इफ सोल्यूशन इज हाइपोटोनिक, दैट मीन्स सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन, that means solute का concentration will be less into the solution and solute का concentration will be higher in the plant cell, right. Next is solvent concentration. So since solute concentration is low, so solvent will be high in the solution. So that means available free water molecules will be high in the solution. Here solute concentration is high, so solvent will be low and available free water molecules will be low. Since free water molecule and water potentials are dependent on each other, so since free water molecules are more, water potential of the solution will be more. Since free water molecules are less, so water potential of the cell will be less. Solute concentration and pi or osmotic pressure are directly proportional, so you can directly say that because the
solution has less concentration of the solute, so pi of the solution will be less. Because the solute concentration in the plant cell is high, that is why, because the solute concentration in the plant cell is high, that is why we can say the pi or osmotic pressure of the cell will be high. Water always move from a region of high to low water potential. That means water will start entering inside the plant cell when it is kept in hypotonic solution. तो observation क्या, end osmosis, water will enter inside the plant cell from the solution. So end osmosis होगा, and as a result of end osmosis आपकी जो plant cell है वो turgid हो जाएगी. नेक्स्ट टाइप का सोल्यूशन है आइसोटोनिक सोल्यूशन. आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल एंड इनसाइड द सेल सेम या सिमिलर रहती है. तो फिर से वही पैरामीटर्स कंपेयर कर लेते हैं. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, the concentration of the solute will be same on both the side, plant cell as well as solution. Therefore concentration of the solvent or water will also be same. Therefore available free water molecule concentration will also be same. Therefore water potential value will also be same, and since both are having same value of the solute concentration, so osmotic pressure of the cell and of the solution will also be बैलेंस्ड और सेम, राइट. तो इसका क्या मतलब है, आपकी सेल के अंदर क्या होगा, तो if a cell is placed in isotonic solution there will be no net movement of the water. What do I mean by that? That means amount of the water that is entering inside the cell from the solution and the amount of the water that is leaving the plant cell and entering into the solution, they will be same or similar in number. So net movement zero हो जाएगा. Movement zero नहीं होगा, net movement of the water molecules will be zero, net flow will be zero. So इस टाइप की सेल को क्या कहते हैं, फ्लैसिड. So whenever my lovely kids, inflow and outflow of the water is in equilibrium, whenever the plant cell is kept in isotonic solution, whenever a plant cell is kept in isotonic solution, the cell will become flaccid, right. I hope this is simple and crystal clear to everyone. So when inflow and outflow of the water across cell is in equilibrium, such cell is termed as flaccid, right. So these are the three types of solution and fate of a plant cell in these three types of solution when it is placed. Next is imbibition. बच्चों मेरे प्यारे, imbibition जो है वो बहुत ही स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है वो सॉलिड्स और कोलॉइडल सब्सटेंसेस करेंगे. So it's a special type, imbibition is a special type of diffusion where water will be absorbed by solids and colloids, and this will lead to increase in the volume of the solids or colloids. Very importantly, water movement जो होगा it is along the concentration gradient, यानी water अपने high से low concentration region की तरफ जाएगा. That means solids and colloids should be present at a low water potential value, only then they will be able to absorb water or water will flow inside them leading to increase its volume. So water potential gradient एक prerequisite है, पहले से ही present होना चाहिए for imbibition to take place. What are the other things? So listen this carefully. Water potential, as I told you, prerequisite for imbibition, water potential gradient between absorbent and the liquid imbibe should be present, and affinity between the adsorbent and the liquid should be there. So these are two important prerequisites. What are the applications of imbibition? Very simple. तो आपने देखा होगा इस तरीके से जो wooden logs होते हैं वो swell up कर जाते हैं, उनके अंदर वॉल्यूम का इंक्रीज हो जाता है by absorbing water by imbibition. So the pressure that is produced by swelling of the wood had been used by prehistoric man to split the rocks and boulders. तो पुराने समय में जब मशीन इक्विपमेंट्स नहीं थे to split the rocks, so with the help of imbibition process, तो क्या होता था, water was sprinkled or sprayed on these big wooden logs, my dear students. As a result, wood is going to do the imbibition of the water. This is going to create an imbibition pressure because of increase in the volume of the wood. My dear students, there will be creation of an imbibition pressure that is enough to split the huge big rocks into pieces. Imbibition pressure also helps the seedling to breaks the seed coat and emerge out of the soil into the open. Very important. Without imbibition, I don't know how
the seed would have managed to emerge outside the cell. तो ये बहुत important दो एप्लीकेशन है मेरे प्यारे बच्चों इम्बाइबेशन का। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग समझेंगे किसके बारे में, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किस तरीके से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का, और उसके बाद में मैं समझाऊंगी किस तरीके से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है फूड का या फिर फोटोसिंथेसिस का। सो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का मैंने आपको पहले एग्जाम्पल भी दिया था। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग डिस्टेंस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, वाटर इज मूविंग फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। अब ये रूट्स टू लीव्स का जो मूवमेंट है ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, राइट। अगर प्लांट आपका कैसा है, ट्री आपका कैसा यूकैलिप्टस ट्री है, तो कितना लंबा डिस्टेंस हो जाएगा जो वाटर को ट्रैवल करना पड़ेगा फ्रॉम रूट्स टू लीव्स पहुंचने के लिए, राइट। सो किस तरीके से होता है ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन से सिर्फ नहीं हो सकता मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है, राइट। सो डिफ्यूजन जैसे स्लो प्रोसेस के हेल्प से अगर आप रूट से वाटर को लीफ तक पहुंचाने जाएंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, जितना कि प्लांट के पास टेक्निकली नहीं है, राइट। उसे जिंदा रहना है, उसे अपने हर एक सेल के लिविंग स्टेट को मेंटेन करना है। So for such long distance to take place, there is a phenomenon that will help, and that is, my dear students, mass flow. So long distance transport जब भी root से leaves की तरफ या leaves से root की तरफ कुछ पहुंचाना होता है तो उसके लिए plant mass flow mechanism का या bulk flow mechanism का यूज करते हैं, राइट। सो डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस एंड कैन अकाउंट ओनली फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। वाटर, मिनरल्स एंड फूड आर जनरली मूव्ड बाय अ मास और बल्क फ्लो सिस्टम। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अब हमें समझना है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर को, तो इसके लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले तो आपको पानी को सॉइल सोल्यूशन से रूट जाइलम में लाना है और फिर रूट जाइलम से उसको लीफ जाइलम तक पहुंचाना है। सो एब्जॉर्प्शन, वापस चलते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की बात चल रही। तो सबसे पहले आपको वाटर को सॉइल सोल्यूशन से, देयर आर टू फेजेस इन विच आई विल एक्सप्लेन दिस। सो फर्स्ट, फ्रॉम सॉइल सोल्यूशन water should enter or water should reach to root xylem. That means ये है फर्स्ट फेज। उसके बाद में रूट जाइलम से होते हुए उसे आपको लीफ जाइलम तक पहुंचाना है, राइट। सो व्हेन वाटर को आप जब सॉइल सोल्यूशन से रूट जाइलम तक लेके आते हैं तो इसे आप कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सो हु इज देयर इन द रूट, who is there in the soil solution? Root hairs. So root hairs have a large absorption surface area. They will absorb water, and there are several layers that are present in the root. So the water molecule that has entered into the plant cell or entered into the root cells of the plant through root hairs, now this water molecules has to cross several layers present in the root in order to reach the root xylem. So this is known as absorption of water. तो ये है आपका absorption of water. Once the water, हालांकि मैं water की बात कर रही हूँ, but water के साथ साथ minerals भी move करेंगे। So water अगर आपका एक बार root xylem तक पहुँच गया तो फिर root xylem से आगे जाना है उसको leaf xylem तक, यानी leaf के तक जाना है। तो इसको आप कहेंगे water movement अपवर्ड मूवमेंट, राइट। या फिर आप इसे एसेंट ऑफ सैप भी कह सकते हैं, एसेंट ऑफ सैप भी कह सकते हैं। सैप क्योंकि वाटर के साथ मिनरल्स भी हैं जो मूव कर रहे हैं, तो सोल्यूशन है अपने आप में ये। सो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, फ्रॉम सॉइल सोल्यूशन टू रूट जाइलम इट इज एब्जॉर्प्शन एंड फ्रॉम रूट जाइलम टू लीफ जाइलम इट विल बी एसेंट, बिकॉज रूट जाइलम से लीफ जाइलम तक पहुंचाने के लिए इस वाटर मॉलिक्यूल्स को, राइट माय डियर स्टूडेंट्स, against the gravity travel करना पड़ेगा. So it is not going to be as easy as absorption. So this second movement, ascent of sap, will be difficult because water molecules, the solution in the xylem will be moving against the gravity. तो water को leaf xylem तक पहुंचना है तो root xylem से पहले stem xylem में water आएगा along with the minerals and then it will reach to the leaf xylem. This is known as ascent of sap. So in order to understand long distance transport of water, we need to understand सबसे पहले absorption कैसे होगा, यानी कि water along with the minerals आपका soil solution से root xylem तक कैसे पहुंचेगा. फिर आपको ये समझना होगा कि एक बार अगर पानी along with the
minerals, that means water along with the minerals, has reached the root xylem, how it will reach the leaf xylem via stem xylem against gravity. This is ascent of sap. तो अभी मैं आपको क्या समझाऊंगी, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है पानी का. सो पानी का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, सिंपल है, डिफ्यूजन की हेल्प से होगा, पैसिवली होगा थ्रू द रूट हेयर सेल्स. सो वंस वाटर इज इनसाइड, तो ये देखो ये आपका सॉइल सोल्यूशन है, इस सॉइल सोल्यूशन में आपका वाटर है और ये जो आपको साइड में नजर आ रहे हैं वो क्या है, रूट हेयर सेल्स हैं, राइट. सो वाया डिफ्यूजन द वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय दीज रूट हेयर सेल्स. सो एक बार पानी अगर अंदर आ गया रूट हेयर में तो वो रूट की डिफरेंट लेयर्स को ट्रैवल करके रूट जाइलम तक पहुंचेगा. तो ये है आपका मेरे प्यारे बच्चों क्या, रूट हेयर्स. तो रूट हेयर से लेट्स से वाटर हैज रीच टू द एपिडर्मिस, क्योंकि root hair is also a part of epidermis, so we can say water somewhere here is the soil solution. ये आपका soil solution है और ये आपकी root hair है, epidermis का ही modification है मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ आपका root hair है, ये मान लीजिए. अब in order to reach the root xylem, ये रहा आपका root xylem, this is your root xylem. In order to reach the root xylem, the water molecule has to क्रॉस सेवरल लेयर्स प्रेजेंट इन द रूट. तो क्या नाम है इन लेयर्स का, आपने एनाटॉमी में पढ़ा है, एपिडर्मिस, देन कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल. जब ये सारे लेयर्स कवर हो जाएंगी, वाटर मॉलिक्यूल्स इनको क्रॉस कर लेंगे, तब वो जाके फाइनली रूट जाइलम तक पहुंच जाएंगे, राइट. सो ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इन ऑर्डर टू रीच द रूट जाइलम देयर आर टू पाथवेज अवेलेबल फॉर द वाटर मॉलिक्यूल्स, एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट, राइट. अब एपोप्लास्ट क्या होता है, ध्यान से सुनना. एपोप्लास्ट क्या होता है, इट्स अ सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल, राइट. आपके पास ये एडजेसेंट सेल्स हैं, इन एडजेसेंट, ये प्लांट सेल्स, इनके पास में सेल वॉल भी होंगे, राइट. तो ये जो एडजेसेंट सेल्स हैं, इन एडजेसेंट सेल्स की वॉल्स को, इस एडजेसेंट सेल प्लांट सेल्स की वॉल्स एक सिस्टम बनाती है जिसे आप एपोप्लास्ट कहते हैं. सो वाटर कैन मूव from one layer of the cell to another layer of the cell with the help of the spaces that is available between the cells as well as the spaces which is there in their cell wall, right. So इस तरीके से एपोप्लास्टिक मूवमेंट की हेल्प से या एपोप्लास्टिक पाथवे की हेल्प से वाटर मॉलिक्यूल्स बिना किसी रुकावट के, बिना किसी हिंड्रेंस के, right, without much of the hindrance, the water molecules can reach from epidermis to the रूट जाइलम. बट याद रखना इस एपोप्लास्टिक पाथवे में एक जगह ब्रेक लगता है और वो है एंडोडर्मिस. सो एंडोडर्मिस की रेडियल और टेंजेंशियल वॉल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. अब ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये बनी हुई होती हैं सुबेरिन की. तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ हैं, वॉल में है. तो कैस्पेरियन स्ट्रिप सुबेरिन की बनी हुई है और ये वाटर रेपेलेंट होता है. तो दैट मीन्स व्हेन द वाटर मॉलिक्यूल्स is using the apoplastic pathway, it can easily reach from epidermis to cortex, right. cortex तक वो आराम से apoplastic pathway spaces available in the cell wall को use करके आ सकता है, right. लेकिन endodermis पे apoplastic pathway को finally symplastic में convert होना पड़ता है. apoplastic pathway cannot be continued in the endodermis because of the presence of the Casparian strips. और finally endodermis से pericycle और pericycle से आपका water रूट जाइलम तक पहुंच जाता है. अब है सिम्प्लास्टिक पाथवे. सिम्प्लास्टिक पाथवे क्या है, इट्स अ पाथवे वेयर प्रोटोप्लास्ट ऑफ द एडजेसेंट सेल्स विल बी यूटिलाइज्ड माय डियर स्टूडेंट्स फॉर द मूवमेंट. तो वाटर क्या करेगा, सबसे पहले एपिडर्मल सेल के प्रोटोप्लास्ट में एंटर करेगा, फिर प्लाज्मोडेस्माटा, दीज आर प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन, इनकी मदद से प्लाज्मोडेस्माटा से एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्टेड होता है. सो व्हेन वाटर इज चूजिंग द सिम्प्लास्टिक पाथवे, वाटर एक्चुअली हैज टू एंटर द प्रोटोप्लास्ट, राइट. यानी कि वाटर को सेल मेम्ब्रेन को, एपिडर्मिस सेल के सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके उसके साइटोप्लाज्म में आना पड़ेगा और उसके बाद में इस एपिडर्मिस को के साइटोप्लाज्म को क्रॉस करके दूसरे कॉर्टेक्स के सेल के साइटोप्लाज्म में जाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन. तो इस तरीके से सिम्प्लास्ट में
जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म, कनेक्टेड सेल्स के साइटोप्लाज्म को क्रॉस करते हुए चलते हैं। तो इस वजह से सिम्प्लास्टिक पाथवे रिलेटिवली स्लोअर होता है, उसमें ज़्यादा हिंड्रेंस होती है इन कंपैरिजन टू एपोप्लास्टिक पाथवे, जो कि एम्प्टी स्पेसेस के अंदर जब वाटर मूव करता है तो आप इसे एपोप्लास्ट कहते हैं। जब पानी सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर करता है तो उसे आप सिम्प्लास्ट कहते हैं। Right? I hope this is simple and clear. So why are using apoplast or symplast or combination of two, the water will reach from root hair cells and finally to the root xylem. This is absorption of water. चलो, अब अगर पानी का एब्जॉर्प्शन हो गया है, वाटर अलॉन्ग विद द मिनरल्स आपके रूट तक आ गया, तो अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? वाटर मूवमेंट अप अ प्लांट, यानी कि वाटर का मूवमेंट रूट जाइलम से स्टेम जाइलम और स्टेम जाइलम से लीफ जाइलम तक आपको पहुंचाना है। पर यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है ग्रेविटी, है ना। तो ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी आपकी डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है। ग्रेविटी वाटर को नीचे पुल करेगी और आपको वाटर को ऊपर पहुंचाना है, राइट। तो ये एक चैलेंजिंग चीज़ है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करते हैं वाटर का मूवमेंट या फिर एसेंट ऑफ सैप किस तरीके से होता है, किस तरीके से वाटर अलोंग विद द मिनरल्स मूव फ्रॉम रूट जाइलम टू लीफ जाइलम वाया स्टेम जाइलम। कई सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग थियोरीज दी इस बात को समझाने के लिए कि किस तरीके से एसेंट ऑफ सैप होता है, और राइट नाउ मोस्ट एक्सेप्टेबल एंड द बेस्ट एक्सप्लेनेशन इज गिवन बाय कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो ये नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इस थियोरी के नेम पर भी एनटीए ने क्वेश्चन पूछे हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एसेंट ऑफ सैप और वाटर मूवमेंट अप अ प्लांट, राइट। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ प्लांट from root xylem to leaf xylem via stem xylem can be explained with the help of cohesion, tension, transpiration, pull theory. अब ये जो पुल थियोरी है, ये जो थियोरी है, ये अपने आप में इन तीन पिलर्स के ऊपर स्टैंडर्ड है। यानी ये तीन फैक्टर्स हैं, या यूँ कहूँ कि ये तीन फोर्सेस हैं, या ये तीन रीजंस हैं जिसकी वजह से एसेंट ऑफ सैप हो रहा है। ट्रांसपिरेशन पुल, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर एंड कॉन्टिन्यूस वाटर कॉलम। ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वाटर यानी कि एसेंट ऑफ सैप इजीली हो जाता है। वाटर अलॉन्ग विद द मिनरल्स कैन ओवरकम द ग्रेविटेशनल पुल एंड रीचेस टू द लीफ जाइलम। चलो समझने की कोशिश करते हैं ट्रांसपिरेशन पुल से। सो ट्रांसपिरेशन पुल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि वाटर को ऊपर की तरफ खींच रहा है, अपवर्ड पुल कर रहा है, दैट इज ट्रांसपिरेशन पुल। तो ये ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट कैसे होता है? दिस ट्रांसपिरेशन पुल इज क्रिएटेड ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। Due to transpiration. So transpiration pull is created due to ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कहाँ होता है? लीफ में होता है। चलो इसको कंपेयर करते हैं। ये आपका एक्चुअल प्लांट है ना, ये तो राइट। और यहाँ पे आपको एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर दिखा रखा है, यानी कि लीफ के अंदर की एनाटॉमी ऐसी दिखती है ना, और स्टेम अंदर से ऐसा दिखता है, राइट, और रूट अंदर से ऐसा दिखता है, राइट। तो आप ये समझें, यहाँ आपको जो बाहर से नजर आता है प्लांट वो है, और इस साइड पे आपको प्लांट के अंदर की जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से दिखेंगे। तो लीफ की एनाटॉमी, स्टेम की और रूट की एनाटॉमी है। तो समझने की कोशिश करते हैं। सो ट्रांसपिरेशन पुल कब क्रिएट होगा? जब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस चल रहा है। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में क्या होगा? बाहर सन है, हाई टेम्परेचर है, राइट। सो बिकॉज ऑफ transpiration process, so during transpiration process what will happen? water molecule, ये रहा आपका मेरे प्यारे बच्चों water का molecule. So during transpiration process water molecule will convert from liquid phase to vapor phase. water molecule जो कि leaf के अंदर है, right? ये leaf का हिस्सा है, this thing is leaf, guys, this thing is leaf. ये पूरा लीफ है, और लीफ के अंदर ये वाटर सेल है। ये लीफ के अंदर मतलब लीफ के अंदर वीन्स है ना, जाइलम के वीनलेट्स है, चैनल्स है जाइलम के, वहाँ पे क्या है? पानी है, वाटर है, राइट। सो आप मान लेते हैं ये लीफ का जाइलम है, वीनलेट्स है, और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या हो रहा है? वाटर प्रेजेंट है। तो ये वाटर ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस लिक्विड फेज से वेपर फेज में कन्वर्ट होगा और यहाँ से एस्केप कर जाएगा। यहाँ से एस्केप करके वाटर कहाँ जाएगा आपका? यहाँ से एस्केप करके वाटर वेपर एटमॉस्फेयर के अंदर ऐड हो जाएगा।
अब देखो, जब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट कर जाता है या ट्रांसपायर कर जाता है मेरे प्यारे बच्चों, रादर आई शुड से, अगर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसपायर कर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की डेफिशिएंसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल की डेफिशिएंसी हो जाएगी। कहाँ पे, इस रीजन में। अभी अभी यहाँ पानी का मॉलिक्यूल था और अभी वो उड़ गया, तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल की डेफिशिएंसी आ जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। साई डब्ल्यू लेस कर रही हूँ मैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाटर की कमी आ गई, वाटर वेपर बन के उड़ गया है, राइट। सो वाटर पोटेंशियल विल डिक्रीज। तो क्या होगा, अब यहां से नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल को पुल किया जाएगा, राइट। ये लीफ का मेन, ये मिड रिप मान लीजिए, ये क्या है, लीफ की मिड रिप मान लीजिए, और मिड रिप क्या होती है, मेन चैनल है, और वहीं से ये वेनलेट्स निकलती है। तो यहाँ पे आप मान सकते हैं ये लीफ का जाइलम है। दिस इज द जाइलम ऑफ लीफ, ये आपके लीफ का जाइलम है, और इस लीफ के जाइलम के अंदर वाटर है। तो यहाँ से जब वाटर निकला तो लीफ के जाइलम से वाटर को पुल कर लिया गया। क्यों, क्योंकि लीफ के जाइलम में वाटर है। तो एज ऑफ नाउ ये रीजन में वाटर पोटेंशियल कम है, लेकिन लीफ के जाइलम में ज़्यादा, तो लीफ के जाइलम से वाटर को ले लिया जाएगा इस जगह पर, इस स्पेस को भरने के लिए। अब जो मॉलिक्यूल वाटर का पुल कर लिया गया है फ्रॉम द लीफ जाइलम, उस डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए लीफ जाइलम जो है आपका स्टेम जाइलम से वाटर को पुल करेगा। ये क्या आपका स्टेम का जाइलम है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका स्टेम का जाइलम है। सो इन ऑर्डर टू फुलफिल द वाटर डेफिशिएंसी इन द लीफ जाइलम, माय डियर स्टूडेंट्स, द लीफ जाइलम इज गोइंग टू पुल वाटर फ्रॉम द स्टेम जाइलम। सो इस तरीके से ये जो लो वाटर पोटेंशियल एरिया है वो पहले तो यहाँ था, उसके बाद में वो लीफ के अंदर था, है ना, लीफ के स्लैमिना वाले रीजन में था, लीफ के वीनलेट्स में था, ये भी कह सकते हैं आप। उससे बाद में वो कहाँ पे ट्रांसफर हुआ, लीफ के जाइलम में, और लीफ के जाइलम से वो कहाँ ट्रांसफर हो गया, स्टेम के जाइलम में, राइट। तो ये टेंशन है, ये डेफिशिट है वाटर का, ये टेंशन जो है वो वीनलेट से मिड रिब में या लीफ जाइलम में, और उसके बाद में वो स्टेम जाइलम तक ट्रांसफर कर लिया गया। अब स्टेम जाइलम में वो टेंशन आ गई है, यानी लो वाटर पोटेंशियल एरिया आ गया है, तो स्टेम जाइलम क्या करेगा, वो रूट के जाइलम से, मान लेते हैं ये आपका रूट जाइलम है ना, मान लेते हैं ये आपका रूट जाइलम है। तो अब ये जो स्टेम जाइलम है वो क्या करेगा, रूट के जाइलम से वाटर को पुल करेगा अपनी डेफिशिएंसी को रिमूव करने के लिए। सो इस तरीके से जब वाटर ऊपर की तरफ पुल होगा रूट से स्टेम की तरफ, तो ये डेफिशिएंसी यहाँ पे कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, राइट। लेकिन उस वजह से जब वाटर मॉलिक्यूल्स रूट जाइलम से स्टेम जाइलम की तरफ मूव करेंगे तो वो जो डेफिशिएंसी जो स्टेम जाइलम में थी अब वो रूट जाइलम में क्रिएट हो जाएगी, राइट। वो टेंशन विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द रूट जाइलम। सो एज अ रिजल्ट रूट जाइलम क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा वाटर मॉलिक्यूल का। तो सॉइल से, थ्रू रूट हेयर सेल, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। सो लो वाटर पोटेंशियल एरिया या लो वाटर पोटेंशियल रीजन विल बी फाइनली क्रिएटेड इनटू द soil or somewhere around the soil in the root hair cell so that passive absorption of water can take place। तो ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों किस तरीके से ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के टाइम पर ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट हो रहा है। ये पुल ही तो है, खींच तो रहे है ना, वाटर को फाइनली सॉइल सोल्यूशन से पुल किया जा रहा है। ये पुल कहाँ से क्रिएट हुआ, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में। तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में ये पुल क्रिएट हुआ जब आपका वाटर मॉलिक्यूल जो है वहां से निकल गए, कहाँ से, लीफ के लैमिना से निकल गए। सो एज अ रिजल्ट एक डेफिशिएंसी, एक टेंशन क्रिएट हो गई। सो यहाँ को पानी को रिप्लेस करने के लिए लीफ जाइलम से पानी को पुल किया, लीफ जाइलम के अंदर पानी डालने के लिए स्टेम जाइलम से पुल किया, स्टेम जाइलम में पानी डालने के लिए रूट जाइलम से किया, और रूट जाइलम में पानी डालने के लिए सॉइल सोल्यूशन। सो एक तरीके का एक पुल क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से वाटर अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है। बिकॉज ऑफ अ ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस वाटर इज पुलिंग अपवर्ड्स। तो वाटर का पुल होता है। तो ये भी एक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि वाटर ड्यूरिंग एसेंट ऑफ सैप इज मेनली पुल्ड और पुश्ड। ऑलवेज रिमेंबर मेनली पुल्ड, क्योंकि आपका ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, ये ट्रांसपिरेशन जो है वो मेन फैक्टर है, रिस्पॉन्सिबल है एसेंट ऑफ सैप का, और बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होता है जिससे पानी ऊपर की तरफ खिंचता है। अब देखिएगा, अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि मैम इस पूरे ट्रांसपिरेशन पुल के अंदर वाटर जो ऊपर की तरफ खिंच रहा है
तो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे क्यों नहीं आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वाटर खुद। तो वाटर के अंदर 3 इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। वाटर के अंदर 3 इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। वाटर हैज 3 इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो वो प्रॉपर्टीज क्या हैं? सबसे पहली प्रॉपर्टी उसके अंदर है कोहेशन, दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एडहेशन, और तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन। कोहेशन मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल की तरफ म्यूचुअली अट्रैक्टेड है, तो एक अट्रैक्शन है। एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को ऊपर की तरफ खींच रहा है जब वो जाइलम से, रूट जाइलम से स्टेम जाइलम के अंदर ट्रैवल कर रहा है। एडेशन, इसके साथ साथ में अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल्स और आपके जाइलम के वॉल्स के अंदर। ये जो आपके ट्रकीड्स और वेसल्स है जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है वाटर के मूवमेंट के लिए, इन ट्रकीड्स और वेसल्स की जो वॉल्स है और वाटर मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में भी अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से वो और आसानी से वाटर मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ पुल हो रहा है। सो दिस इज cohesion and adhesion. Cohesion means mutual attraction between water molecules, and adhesion means attraction between the walls of the trachyary elements and the water molecules. Both are helping in upward movement of water. Next is surface tension. So surface tension, मेरे प्यारे बच्चों, surface tension की अगर मैं बात करूँ तो surface tension, cohesion, adhesion, ये तीनों important physical properties है जो प्लांट के, जो ये तीनों important physical properties है जो वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है और प्लांट के अंदर upward movement of water में हेल्प करती है. So all the 3 properties, cohesion, surface tension and adhesion, will provide two important properties to water. वो क्या है? First, इनकी वजह से वाटर के अंदर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ आता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ आता है, और इसके साथ साथ में हाई कैपिलैरिटी भी आती है. So because of cohesion, adhesion and surface tension, which is the property of the water, water has a high tensile strength. High tensile strength मतलब ability to resist the pulling force. तो नीचे से कौन पुल कर रहा है? नीचे से ग्रेविटी पुल कर रही है. तो वाटर तो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है इन द स्टेम जाइलम सो एज टू रीच द लीफ जाइलम, और नीचे उसको कौन पुल कर रहा है? ग्रेविटी उसको पुल कर रही है, राइट? ग्रेविटी उसको नीचे लाने की कोशिश कर रही है, राइट? सो ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा. बिकॉज ऑफ दिस कोहेशन, एडिशन, सरफेस टेंशन, वाटर हैज अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ विच वाटर is moving upward and it is resisting the downward gravity. Next is high capillarity. So because of these three important properties of the water, water can easily rise up, just like you have seen how you must have seen water rising in a capillary tube. Similarly, इसी तरीके से जो बहुत ही छोटा सा narrow diameter है trachyary elements का, ये भी help करता है मेरे प्यारे बच्चों in order to rise up, in order to have high capillarity, in order to move from root xylem to stem xylem to leaf xylem. Next reason है मेरे प्यारे बच्चों, yes, very important factor है इनफैक्ट, ये वो फैक्टर है वाटर. अब देखो जिस तरीके से पानी मूव कर रहा है, एंड यू नो दैट अंडर हाई टेंशन क्या होता है, कभी कभी वाटर का जो कंटिन्यूस स्ट्रीम है वो ब्रेक हो जाता है क्योंकि बहुत इनॉर्मस टेंशन काम कर रही है, राइट? बिकॉज ऑफ द ट्रांसपिरेशन पुल, इनॉर्मस टेंशन है पूरे के पूरे प्लांट के जाइलम वाले एलिमेंट में. अब ध्यान से सुनना, हमारे इस प्लांट के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट फोर्स है, एक और इम्पॉर्टेंट प्रेशर है जो काम कर रहा है, जिसको आप रूट प्रेशर कहते हैं. जिसको आप क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? रूट प्रेशर. तो ध्यान से सुनना, रूट प्रेशर का जो मेन और मेजर कंट्रीब्यूशन है पूरे एसेंट ऑफ सैप में, वो क्या है? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मेजर contribution of the root pressure is to maintain this, or is to re-establish the continuity of the water molecule in the xylem column, which might break because of the enormous
टेंशन। यही मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है रूट प्रेशर का। रूट प्रेशर मेन फोर्स नहीं है वाटर के एसेंट ऑफ सैप के लिए। मेन फोर्स कौन है? आपका ट्रांसपिरेशन पुल। तो रूट प्रेशर क्या कर रहा है? रूट प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा उस कॉन्टिन्यूटी को, वाटर मॉलिक्यूल्स के कॉन्टिन्यूटी को जाइलम के अंदर मेंटेन करता है। सो दिस इज हाउ with the help of cohesion, tension, transpiration, pull theory, ascent of sap is explained, which takes help of transpiration, pull, high tensile strength of water and continuous water column. These are the three important pillars on which this theory is explaining ascent of sap. So I hope everyone is clear कि किस तरीके से water molecules from root xylem reaches to leaf xylem via stem xylem. नेक्स्ट इज मेरे प्यारे बच्चों फूड, राइट। तो अभी तो हमने सुना और ये समझा कि किस तरीके से वाटर अलॉन्ग विद द मिनरल्स मूव करते हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर माय लवली किड्स दैट हाउ द photosynthetes, the products that are produced during photosynthesis, the carbohydrate sugar, how they will travel from source to sink. सोर्स मतलब जहाँ पर ये बन रहे हैं फोटोसिंथेट्स, जहाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा है, सिंक जहाँ पर इनको स्टोर होना है या यूटिलाइज किया जाना है। सो ध्यान से सुनिएगा, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सो फ्लोएम के अंदर होगा ये। सो ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सल्यूट विल टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। वाटर अलॉन्ग विद द मिनरल्स दे वर मूविंग विद द हेल्प ऑफ जाइलम। सो फोटोसिंथेट्स, ऑर्गेनिक सल्यूट्स, है ना, sugars, carbohydrate sugars, they will move with the help of phloem. कुछ important facts हैं। फूड प्राइमरीली सुक्रोज की बात हम लोग करेंगे, इज ट्रांसपोर्टेड बाय वास्कुलर टिश्यू फ्लोएम फ्रॉम सोर्स टू सिंक। सोर्स जहाँ पे वो बन रहा है, सिंक जहाँ पे उसका यूटिलाइजेशन या स्टोरेज होना है। फ्लो इस पे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस पे, इन दोनों पे क्वेश्चन बन चुका है। एनटीए हैज ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चन ऑन दीज 2 पॉइंट्स। तो ये 2 पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। Phloem sap is mostly water and sucrose, but also contain other sugar, hormones and amino acid. Next, phloem sap is slightly alkaline. Please remember, NTA ने पूछा है क्वेश्चन recent history of NEET एग्जाम में। ऑर्गेनिक कार्बन मोस्टली सुक्रोज में ही क्यों ट्रैवल करती है? तो ट्रांसपोर्टेशन में आपको समझाऊंगी किस तरीके से जो फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें आई विल बी यूजिंग द वर्ड सुक्रोज। सो द क्वेश्चन इज मोस्टली carbohydrate, why do they travel in form of sucrose? Because sucrose is chemically inert and non-reducing, यानी वो रिएक्ट नहीं करती है, as it is अपने केमिकल कॉम्पोजिशन को मेंटेन करके सोर्स से सिंक तक पहुंच जाती है, और वो ऑस्मोटिकली एक्टिव है, यानी कि वो ट्रू सोल्यूशन बना सकती है। प्रेशर ग्रेडियंट की हेल्प से एक सेल से दूसरे सेल या एक रीजन से दूसरे रीजन, सोर्स से सिंक तक ट्रैवल कर सकती है। ये 2 इंपॉर्टेंट रीजन है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। So with the help of pressure flow or mass flow hypothesis, I will explain you, which was proposed by Ernst Mach. Let us try to understand how transportation of sugar or transportation of sucrose molecules takes place inside phloem from source to sink. तो उसके लिए आपको ये डायग्राम समझना पड़ेगा। इस डायग्राम की हेल्प से I will be able to explain you easily and you will be able to remember also easily. So ये क्या है? आपका जाइलम और फ्लोएम दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन लगेगा, कैसे ये भी मैं समझाऊंगी। ये फ्लोएम है ना। अब इसमें देखना, ये आपका सोर्स सेल है। सोर्स सेल्स आपका मीजोफिल सेल्स हो सकती है, जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, डार्क रिएक्शन चल रही है, आपका शुगर मॉलिक्यूल बन रहा है। याद रखना, हम लोग किस में ट्रैवल करेगा हमारा फोटोसिंथेट्स? शुगर विल बी सुक्रोज। तो ये आपकी सोर्स है, और ये जो रेड डॉट्स है ना, ये क्या है? रेड डॉट्स आर नथिंग बट योर सुक्रोज मॉलिक्यूल्स, शुगर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो दिस इज योर सोर्स जहां पर सुक्रोज बन के रेडी हुई है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये है आपका कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब सेल्स, दे विल बी लाइक टुगेदर, एक साथ होते हैं वो। और ये आपका क्या है? सीव ट्यूब सेल्स है। दिस इज सीव ट्यूब, सीव ट्यूब सेल। कई सारे सीव ट्यूब सेल्स एक सीव ट्यूब बनाएंगे। ये सीव प्लेट है which will have perforation, जिससे एक सीव ट्यूब एलिमेंट से दूसरे सीव ट्यूब एलिमेंट में सुक्रोज ट्रैवल कर सकती है, राइट। सो अभी क्या हो रहा है? सबसे पहले क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आपको ये चीज़ें समझनी है कि ये आपका सोर्स सेल है जिसमें सुक्रोज है, ये आपका कंपेनियन सेल है, और ये आपका सीव ट्यूब सेल है। अब इसके साथ साथ में बगल में मैंने जाइलम का कॉलम भी बनाया है ना, ये आसपास ही होते हैं। तो दिस इज योर जाइलम कॉलम। अब ध्यान देना, सबसे पहले 2 चीज़ें बताऊंगी, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, बट वो दोनों साइमल्टेनियसली होगी। तो
बिकॉज ऑफ द ट्रांसपिरेशन पुल वाटर आपके जाइलम के अंदर रेज कर रहा है या वाटर आपके जाइलम के अंदर है। तो यानी जहां पे जिस लीफ के अंदर आपका ये फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो उस लीफ के आसपास जो जाइलम होगा वहां पर वाटर बिकॉज ऑफ द ट्रांसपिरेशन पुल तो प्रेजेंट पहले से ही है, राइट। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज बिकॉज ऑफ द ट्रांसपिरेशन पुल वाटर इज already there in the xylem vessels. Now what will happen from the source, the sucrose will be added to the companion cell and then from companion cell the sucrose will be added into the sieve tube element. तो जब आपकी सुक्रोज को कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब एलिमेंट में ऐड किया जाता है तो ये अपने आप में एक एक्टिव प्रोसेस है, राइट, और इसे आप लोडिंग कहते हैं। सो शुगर और सुक्रोज इज गेटिंग लोडेड इनसाइड द सीव ट्यूब सेल्स, ठीक है। सो दिस फर्स्ट स्टेप एंड दिस सेकंड स्टेप विल टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, ये कोई अलग अलग नहीं है, पहले वाटर आएगा उसके बाद में फोटोसिंथेसिस का वेट होगा, नो, साइमल्टेनियसली चल रहा है। बट आई कांट एक्सप्लेन 2 पॉइंट्स एट वन टाइम, सो आई एम सेइंग 1 and 2 लाइक दिस, बट ये सब साथ में होंगे। सो सबसे पहले ट्रांसपिरेशन पुल इन वाटर, ट्रांसपिरेशन पुल लिफ्ट्स द वाटर अप जाइलम कॉल। नेक्स्ट, सोर्स सेल लोड सुक्रोज इनटू कंपेनियन सेल्स and the sucrose actively, ये देखिएगा, sucrose actively enters the phloem sieve tubes. A high osmotic concentration develops in the sieve tubes. कैसे? अब देखो, जब सुक्रोज कहाँ है? यहाँ सीव ट्यूब सेल्स में। तो आपको पता है सुक्रोज भी अपने आप में सल्यूट की तरह काम करेगा, राइट। तो सल्यूट की तरह काम कर रहा है। अगर जैसे ही सुक्रोज आपका एंटर करेगा सीव ट्यूब सेल में तो वो क्या करेगा? सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा, फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स सुक्रोज से अटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। सो बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ द सुक्रोज सल्यूट इन द सीव tube cells, the water potential of the sieve tube cell will decrease. तो इसका क्या होगा? water potential जो है वो डिक्रीज कर जाएगा सीव ट्यूब सेल्स का, जैसे ही इसके अंदर सुक्रोज को आप ऐड करोगे। तो अब इसी सीव ट्यूब सेल के बगल में क्या है? साइड में क्या है? जाइलम है। तो जाइलम में वाटर है, राइट। तो जाइलम का जो वाटर पोटेंशियल होगा वो हाई होगा इन कंपैरिजन टू सीव ट्यूब सेल। सो वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग, वाटर विल स्टार्ट flowing inside the sieve tube cells from the xylem. तो इस तरीके से क्या होगा? आपके sieve tube cell में टर्जिडिटी आ जाएगी बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ द वाटर। तो हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा इस sieve tube cell में, राइट। तो इस तरीके से आपका जो सुक्रोज सोल्यूशन है विद द हेल्प ऑफ सीव प्लेट्स, वो एक सीव ट्यूब से दूसरे सीव ट्यूब, दूसरे से तीसरे, इस तरीके से हर एक सीव ट्यूब सेल को क्रॉस करके फाइनली आपका सुक्रोज सोर्स से सिंक तक पहुंच जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस। सो सीव tube absorb water from the xylem by osmosis, thereby raising the turgor pressure. Next, internal pressure differences drive the phloem sap along the sieve tube to sink cell, which maintain a low turgor pressure by converting the soluble organic substances into insoluble one. Next, अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही आपका सोर्स से सिंक तक पहुंच जाता तो क्या होगा? अब अनलोडिंग होगा, राइट। सो सुक्रोज इज अनलोडेड इनटू द सिंक सेल, राइट। तो अगर आपने शुगर मॉलिक्यूल्स को, सुक्रोज को सीव ट्यूब सेल से निकाल के अगर आपने सिंक सेल में डाल दिया तो यहाँ पर सीव ट्यूब सेल के अंदर सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगा, और सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगा तो वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा सीव ट्यूब सेल का बिकॉज ऑफ द अनलोडिंग ऑफ द सुक्रोज फ्रॉम द सीव ट्यूब सेल्स टूवर्ड्स द सिंक। दिस अनलोडिंग इज ऑल्सो एक्टिव। लोडिंग और अनलोडिंग दोनों ही एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। तो जैसे ही वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा इस सीव ट्यूब एलिमेंट का, वाटर वापस से बैक फ्लो करेगा सीव ट्यूब एलिमेंट से जाइलम के अंदर। सो वाटर मूव्स बैक फ्रॉम सीव ट्यूब into the xylem by osmosis. Very simple. So इस तरीके से आपका सुक्रोज सोर्स से सिंक तक ट्रैवल कर चुका है with the help of water potential differences। आपके सीव ट्यूब सेल्स के अंदर वाटर एंटर करता है, एग्जिट करता है, सोल्यूशन बनाता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है, जिससे आपका जो सुक्रोज है वो सोर्स से सिंक की तरफ
ट्रैवल कर लेता है। तो इस तरीके से आपका मूवमेंट होता है सुक्रोज का इनसाइड द फ्लोएम। दिस इज हाउ मास फ्लो ऑफ बल्क फ्लो टेक्स प्लेस इनसाइड द फ्लोएम। सिंपल मेरे प्यारे बच्चों, यही पूरे के पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव था, इस पूरे लेक्चर का ऑब्जेक्टिव था कि पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट इस एक लेक्चर में समझाना। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिस पे अभी तक एनटीए ने नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं या फिर पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है आपके नीट 2023 एग्जाम में, वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ में इस लेक्चर में कवर कर लिए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट 2023। Make it a point you go through this lecture, entire lecture at least once before sitting for your NEET exam। ये पूरे के पूरे लेक्चर में वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं जो कि आपके नीट एग्जाम के अंदर जिन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो मेक इट अ पॉइंट टू गो थ्रू इट एंड रिवाइज द कॉन्सेप्ट थ्रू दिस, राइट। तो अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ में जो भी नीट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। Also, if you have not hit the bell icon, do so that whenever next time we will upload such videos or go live, you will also be notified and won't miss any session in future। और सब्सक्राइब नहीं किया तो करो, अभी के अभी करो, right? Bye bye guys, that's all from this class. Take care, all the best.